میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان ریاض صاحب اور یہ ان کی مسز سمیہ آصف جو نیولی میرڈ ہیں اور 1 سال کا ان کا بچہ ہے. موٹر سائیکل کے اوپر ایسا ایڈونچر کہ پورا ناردرن ایریاز پھر رہے ہیں اس کمسن بچے کے ساتھ. السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان ریاض صاحب اور یہ ان کی مسز سمیہ آصف جو نیولی میرڈ ہیں اور 1 سال کا ان کا بچہ ہے جن کا نام انابیہ ہے. اور یہ پاکستان کے اندر پیسفل ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں اور موٹر سائیکل کے اوپر ایسا ایڈونچر کہ پورا ناردرن ایریاز پھر رہے ہیں اس کمسن بچے کے ساتھ. ان سے جانیں گے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیا فیڈ بیک دیں گے ان علاقے اور ان وہاں کے لوگوں کے بارے میں. اچھا سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ نیولی شادی ہوئی آپ کی اور ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور آپ اپنی کمسن بچی کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر پورا پاکستان پھرتے رہے, یہ قصہ کیسے شروع ہوا؟ پہلی دفعہ جب گیا تھا کمراٹ کو دیکھنے کے لیے تو میں اپنی وائف کے ساتھ گیا تھا اور میں پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ گیا تھا. جب میں تھل میں پہنچا تو رات کو اندھیرا, سردی بلا کی اور ڈرائیور کی ان کی لینگویج جو کوہستانی لینگویج ان لوگوں کی. اب مجھے ان کی لینگویج کچھ خاص سمجھنا ہے, ان کو میری سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اب رات کے اس وقت تو آپ کو یہاں ہوٹل نہیں ملنے لگے. میں نے کہا جی اب میں کیا کروں. میں نے مسز سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں پھر ہم کیا کریں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور نے مجھے آفر کی کہ یہاں سے کچھ دور میرا گھر ہے, آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے. اب یہ ڈیسیژن بڑا ایک مشکل ڈیسیژن تھا. نیولی میری وائف میرے ساتھ تھیں, علاقہ میرے لیے نیو, سردی بہت زیادہ, سناٹا, نیچے دور جنگل میں سے پانی کے گزرنے کی بھی ساتھ ساتھ مجھے آواز آ رہی ہے. اب وہ سارا آپ ایک دم منظر اپنے ذہن میں اسکیچ کیجئے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بڑا اسکیری سا وہ تھا. تو ہم نے کہا جی اب چلیں ٹھیک ہے جی. ڈرائیور نے کیا کیا کہ وہیں سے اس نے کچھ چپلی کباب خریدے, ایک دکان کھلی ہوئی تھی وہاں سے چپلی کباب لیے, کچھ اس نے چیزیں لی اور اس نے کہا جی آج ہی چلیں. گاڑی اس نے بیک کی اور آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک جگہ پہ روک دی. اندھیرا, اس نے کہا جی اوپر جانا ہے. اوپر میں دیکھوں اندھیرا, پہاڑ, مجھے سمجھنا ہے کیا کرنا ہے. اس نے کہا جی آپ سامان ہمیں پکڑائیں. سامان اس نے ہمارا اٹھایا اور ہم لوگ پہاڑ پہ چلنا شروع ہو گئے. تو اس وقت تک تقریباً ہمیں 18 گھنٹے ہو گئے تھے سفر میں رہتے ہوئے. لاہور سے ہم لوگ چلے تھے, کمراٹ تھل گاؤں تھے, پیچھے ہم لوگ آ گئے تھے. ہم آہستہ آہستہ پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہو گئے. کوئی 15-20 منٹ کی چڑھائی کے بعد ہم لوگ گئے ہیں. تو اس کے بعد جو تھا نا ہمارا, آپ سمجھ لیں کہ ہماری دنیا بدل گئی. وہ ٹرسٹ جو ہم نے کیا تھا اس پہ ہماری دنیا بدل گئی. مطلب پازیٹیو فیڈ بیک آیا آپ کو. میں اب آپ کو وہ کس طرح سے ایکسپلین کرنا شروع کروں کہ وہ جو ڈرائیور تھی اس کی مدر جو تھیں وہ دادی اور نانی بن چکی ہیں. انہوں نے میری مسز کے پاؤں دبائے. انہوں نے بستر پہ ہم بیٹھے تھے, اسی بستر پر انہوں نے ہمیں گرم پانی پرووائڈ کیا ہاتھ دھونے کے لیے, منہ دھونے کے لیے. ٹھیک آدھے پونے گھنٹے بعد انہوں نے ہمیں چپلی کباب سرو کیے, گھر کے جو بنے ہوئے سالن تھے وہ سرو کیے. میری مسز کو ان کی خواتین اپنے ساتھ لے کے گئیں, ان کو چینج کروایا. ہمارے پاس کپڑے تو اپنے تھے, انہوں نے ہمیں چینج کرنے کے لیے پراپر ایک روم دیا کہ جی آپ لوگ یہاں پر جا کر چینج کر لیں. اگلے دن ہم نے ان سے اجازت لینا چاہیے کہ جی آپ نے بہت شکریہ, ہمیں رات کو ہوٹل نہیں ملنا تھا, اب ہم ہوٹل باہر دیکھ لیں گے اور ہم ذرا گھوم پھر کے آئیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ کا پلان کیا ہے. اچھا ہم لوگوں نے کہا کہ جی اب ہم اندر جنگل میں جانا چاہتے ہیں. وہاں سے تھل سے اندر جنگل جو ہے تقریباً آپ کو 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور 4x4 گاڑیاں جاتی ہیں. اب چونکہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ تھے تو میں نے اپنی مسز سے یہی مشورہ کیا کہ ہم نیچے جا کے کوئی جیپ کروا لیتے ہیں, اندر جنگل کو جا کے انجوائے کرتے ہیں, کچھ دیر وہاں پہ ٹائم ہم لوگ اسپینڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وہاں جانا ہے, ہم آپ کو ارینج کر دیتے ہیں. کہا جی ویل اینڈ گڈ, یہ تو بہت اچھا کہ آپ ہمیں ارینج کر دیں گے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں. جب ہم نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ساری گھر کی خواتین کو, جیسے عید پر نہیں تیار ہوتے, ان کی خواتین باپردہ ہو کے, مطلب ان کے فیس مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن مجھے یہ پتا چل رہا کہ یہ پراپر تیار ہوئی ہیں. ان کی ساری گھر کی خواتین, ان کے سارے مرد, سارے بچے, انہوں نے گھر کے برتن لیے, انہوں نے راشن لیا. انہوں نے کہا جی آئے چلیں. میں نے کہا جی یہ سب کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے پراپر ایک بڑی گاڑی کروائی ہے, ہم جنگل میں ہی اسٹے کریں گے, وہیں پر ہم کھانا پکائیں گے آپ لوگوں کے لیے, وہیں پہ آپ لوگوں کو کھلائیں گے اور آپ نے جہاں گھومنا ہوگا آپ گھوم لیجیے گا, آپ ہمارے ساتھ پھر واپس گھر آ جائیے گا. واہ واہ. اور یہ آپ پہلی دفعہ ان کو ملے تھے؟ یہ جی رات کو میرا پہلا ان کے اوپر ٹرسٹ تھا, جو اگلے دن انہوں نے دوبارہ سے انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو جانتا نہیں تھا, میں اس علاقے میں نہیں گیا ہوا تھا اس سے پہلے. یہ میرا پہلا موقع تھا ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر کیا ہوا فردر؟ ہم لوگ جنگل میں گئے, جنگل میں ہم نے ٹائم سپینڈ کیا. اور یہ بھی بڑی پازیٹیو چیز تھی کہ انہوں نے اپنا کھانے پینے کا ایک سیٹ اپ ایک طرف لگایا, سارے ان کی مرد اور خواتین ایک سائڈ پہ ہو گئی اور انہوں نے ہمیں ایک طرف دے دیا کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. واہ جی واہ. دیکھیں مجھے کتنا اچھا لگا کہ آپ پہلی دفعہ ان کو مل رہے ہیں اور کتنے اچھے لوگ ہیں وہاں کے کہ آپ پہلی دفعہ ان سے ملیں اور کتنا اچھا فیڈ بیک اور انہوں نے وارم ویلکم آپ کو کیا اور گھر کے بیوی بچے سب لوگوں نے آپ سے کیا. اس کے بعد پھر آپ موٹر سائیکل پر گئے, یہ کیا وجہ بنی؟ ایک
ताल्लुक जब मेरा उनके साथ बिल्ड हो गया तो मैंने उनको तहाइफ लाहौर से भिजवाए, कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें, कुछ उन्होंने मुझे भिजवाई वहाँ से जो उनकी रवायती चीज़ें थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको दावत दी कि आप लाहौर तशरीफ़ लेके आएँ। वो पहली मरतबा अपनी मिसिस के साथ, ऑल्दो कि उनके कोई 5 बच्चे हैं, लेकिन वो 2 छोटे बच्चों के साथ वो लाहौर तशरीफ़ लेके आए। तो लाहौर उनके लिए बिल्कुल न्यू था क्योंकि वो पहली मरतबा लाहौर आए थे। और लाहौर जब आए तो मैंने उनको पैकेजेस मॉल दिखाया, मैंने उनको एम्पोरियम मॉल दिखाया, वहाँ पे मैंने उन्हें 3D राइड्स करवा दी। तो उनके लिए ऐसा एक यूनिक एक्सपीरियंस था वो लोग, तो हमारा एक ताल्लुक बन गया। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो अभी ये 3 महीने की थी, तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर चूज़ की। 3 महीने की मेरी बेटी थी, मैं इसको 19-20 घंटे का सफ़र करवा के कुमराट ले गया। फिर अब जब ये 1 साल की हुई तो मैंने डिसाइड किया कि अब वो वक्त आ गया कि इसको मैं वो इलाके बाइक के ऊपर दिखाऊं। उससे होना ये था कि एक ऐसा मैसेज लोगों के पास जाना था कि आपके ये एरियाज़ जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, आपसे बड़े रिमोट एरियाज़ हैं, यहाँ पर आप बिला खौफ व झिझक आप जा सकते हैं। अपनी मेरी 1 साल की बेटी और मेरी मिसिस, देखिए इससे ज़्यादा नाजुक रिश्ते कौन से आपके होंगे। मैंने बाइक ली और मैंने उन एरियाज़ में सफ़र किया। मैं मर्दान से लेके कुमराट तक गया, थल के मुकाम तक, थल से लेके अंदर 2.5-3 घंटे की फिर बाइक राइड पे लेके मैं आबशार से आगे काला चश्मा तक गया। फिर काला चश्मा से ऑल द वे वापस मैं अपर दीर शहर में आया। अपर दीर से मैं लवारी टनल तक गया, चित्राल की वो बैक साइड बनती है, और लवारी टनल से लेके फिर मैंने बैक वापस मर्दान आया। तो ये मैंने सारा सफ़र जो था मोटर बाइक के ऊपर किया। बेटी मेरे साथ थी, ऑल्दो ये बहुत मुश्किल सफ़र था। ये एक चीज़ है कि आप सारा इलाका मोटरसाइकिल पर फिरते रहे बिला किसी खौफ के, क्योंकि आप जहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस था वहाँ के लोगों का, स्पेशली जिस तरह आपको मिले थे, वो एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है। वो मेरी सारी ज़िंदगी के लिए एक यादगिरी मेरे पास एक ऐसी वो याद महफूज हो गई है। उन एरियाज़ के लोग इतने मिलनसार, इतने मेहमान नवाज वहाँ के लोग हैं कि आप चलती गाड़ी में, चलती बाइक में आप कहीं पे भी रोक के ना किसी से आप कुछ कहें कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, आप यकीन करें कि आपको एक पानी का गिलास चाहिए होगा ना, वो ना सिर्फ आपको पानी ला के देंगे, वो चाय ला के देंगे, वो वहाँ से आपको लस्सी ला के देंगे। इस कदर मिलनसार लोग हैं। उस खित्ते के लोग जो हैं ओवरऑल बहुत खूबसूरत लोग हैं, और वो वहाँ के आने वालों को, जैसे हम मैदानी इलाकों से ये लोग जाते हैं, वो उनको ओन करते हैं वहाँ पर। ये एज अ गेस्ट नहीं लेते हैं, वो अपने लोग समझ के उनको ट्रीट करते हैं वहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब रात हो रही थी आप लोगों को उस जगह पे, और ड्राइवर ने कहा कि आप मेरे साथ चलें और मेरे घर में स्टे करें, और नई नई शादी आप लोगों की, पहली दफ़ा उस बंदे को आप देख रहे हैं, मिल रहे हैं, उस टाइम आपकी क्या तासुरात है? मैंने तो इनको कहा था कि ना जाओ, होटल ही चलो, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं जानते थे उनको। तो फिर आगे हम गए, हम चले गए थे आगे, ड्राइवर हमें ले गया था आगे हमारे बहुत ज़्यादा कहने पे, लेकिन आगे कोई होटल ही नहीं था। फिर हम वापस आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हमारे साथ चलो। इन्होंने अपने 2-4 फ्रेंड्स को बता दिया कि हम, ये गाड़ी का नंबर है, ये ऐसे है, हम यहाँ पे जा रहे हैं अगर कुछ हो जाए तो पता कर लेना हमारा। फिर हम गए वहाँ पे, जैसे ही हम ऊपर गए, क्योंकि काफ़ी वो पहाड़ चढ़ के है उनका घर, तो बड़ा हम थक गए थे ऊपर जाते, 10 मिनट की मुसलसल चढ़ाई थी, ऊपर गए हैं। जैसे ही हम गए वो लोग मुझे अपने साथ ले गए, उसके बाबा अलग रूम में थे। जैसे ही मैं उनके रूम में जाके बैठी, उन्होंने मेरे ऊपर सबसे पहले तो रज़ाई डाल दी। उनके घर की सबसे बड़ी लेडी जो कि 70-80 प्लस होंगी तो वो आके मेरे पाँव दबाना शुरू हो गई। मुझे उनकी ज़ुबान नहीं आ रही थी समझ में, पता नहीं, बस वो जो ड्राइवर था उसकी बीवी को आती है थोड़ी बहुत उर्दू, तो वो आके मेरे सर दबाना शुरू हो गए, शोल्डर पे मेरे दबाना शुरू हो गए। मुझे शर्म आ रही थी कि नहीं नहीं आप रहने थे, वो बहुत बड़ी थी मुझसे। तो बस फिर मैंने उन्हें किसी तरह करके मना किया कि नहीं नहीं। फिर हम इनके पास, इनके रूम में चली गई हूँ मैं, हाथ धुलवाए उन्होंने गर्म पानी से, हालांकि उनके यहाँ इस कदर ठंडा पानी है, पता नहीं उन्होंने कैसे गर्म किया, उनके यहाँ गैस वगैरह का भी कंसेप्ट नहीं है, लकड़ी पे पता नहीं कैसे पानी उन्होंने गर्म किया, हाथ धुलवाए हैं। बाहर से वो मुर्गी लेके आए थे, उनके यहाँ ये 1-2 किलो ऐसे नहीं मिलता, पूरी मुर्गी मिलती है, घर में ज़िबा करो। फिर वो गोश्त बनाया था उन्होंने, राइस थे, और साथ में सैलेड वगैरह रखी, बाद में चाय दी, फिर थोड़ी गप्पे मारी हमने। मेहमान नवाजी इतनी की, तो जो सारा डर था जो पहले आप सोच रहे थे, उसके बाद कितना एकदम चेंज आया आप में? बहुत ज़्यादा। फिर तो हम उनके ऐसे हो गए जैसे फैमिली मेम्बर है, अब तो वो खुद हमें कॉल कर करके बुलाते हैं, आप आएँ आप आएँ। अभी हमें होके आए, अब उनका फिर है कि ईद के बाद आपने लाजमी आना है, तो अब इसके बाबा का फिर से मूड बन रहा है जाने का। माशाल्लाह। अब मेन मकसद यहाँ पर यही है कि जितने भी ओवरसीज़ हैं और जो टूरिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, उनको ये बावर करवाना है कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। आप
किसी भी जगह पर किसी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी जान माल इज्जत को कोई खतरा नहीं है। वहाँ वो पहाड़ का क्या किस्सा है कि उन्होंने आप लोगों को पहाड़ दिया एक? अब चूंकि उनके साथ मेरा कोई 2-3 साल का रिलेशनशिप बन गया, 2-3 मरतबा वो लाहौर आ चुके हैं, मैं वहाँ पे कुमराट जा चुका हूँ, तो उन्होंने अपने पास वही पहाड़ के ऊपर ही मुझे एक थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा जो है वो गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम आपके 2-2.5-3 लाख रुपए लगेंगे, आप 3 कमरे यहाँ पे अपने डालें और उसका ताला चाबी आप अपने पास रखें, जब आपका दिल चाहे आप आए यहाँ पे रहें। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक ही चीज़ तो है, एक हमारा दिल बड़ा और एक हमारे पास ज़मीन बहुत है, तो आप ये आएँ और ये बनाएं यहाँ पर हमें। नाजरीन देखें कितनी अच्छी बात है। मैं चाहूँगा एक मैसेज देना चाहें आप वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के दूसरे जो मैदानी इलाके हैं उनके लोगों को, ओवरसीज़ को, कि टूरिज़्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इन एरियाज़ में आप आइए, यहाँ पर आपकी हर चीज़ की सेफ्टी है। आपको यहाँ पर लोग खूबसूरत मिलेंगे, आपको एरियाज़ खूबसूरत आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। आइए अपने मुल्क को देखिए, यहाँ पर खूबसूरती की इंतहा है। मतलब जिन चीज़ों को देख के दुनिया लाखों रुपया दे के दूसरे ममालिक में जाती है, अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। आपने पहाड़ देखने, आपने बर्फ़बारी देखनी, आपने जंगल देखने, आपने नदी नाले, क्या चीज़ देखनी है आपको यहाँ पर मिलेगी। कुछ लोगों ने आपके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे मैसेजेस वगैरह में कि यार ये बंदा पागल है, क्या है, वो क्या सीन है? बहुत ज़्यादा तनकीद कहीं लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही कर दी, मुझे इनबॉक्स मेरा भर दिया, कमेंट्स लोगों ने भर दिए, वो इसी वजह से कि जी आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। प्लान जब ये करा था ना, इस टूर की प्लानिंग मुश्किल थी, एग्जीक्यूशन तो खैर थी ही मुश्किल, इसकी प्लानिंग भी एक मुश्किल थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं उन एरियाज़ में ऑलरेडी जा चुका हूँ, वहाँ के लोगों को मैं देख चुका हूँ, तो मैंने बड़े कैलकुलेट किया था इस सारे काम को कि मेरा इतना सफ़र है, इस सफ़र में मुझे बेटी की ये चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे मिसिस की ये चीज़ें चाहिए होंगी, और मुझे पता था कि अगर 1-1.5 किलोमीटर के बाद मुझे कहीं रुकना है या मुझे खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे पता था कि वहाँ के लोग इतने वेलकमिंग है कि उन्होंने मुझे आके हेल्प के लिए, मैं कहूँ या ना कहूँ, उन लोगों ने आके मेरी मदद कर देनी थी। तो ये चीज़ मेरे अंदर मान था, तो मैंने इस टूर को इसीलिए मैंने कदम भी बढ़ाया कि मुझे पता था उन एरियाज़ का। एक फ़ोटो आपकी बड़ी वायरल भी हुई थी नाश्ते वाली, और फिर उसके बाद ये छोटी की तस्वीरें जो वहाँ के बच्चे हैं उनके साथ घुल मिल गई थी, और ये तो बिल्कुल ही फ्रेंडली माहौल के अंदर चली जाती है माशाल्लाह। वो नाश्ता जो पहला, मैं जब हनीमून पे गया था तो जब रात हमने गुजारी थी सुबह, तो वो नाश्ता ऐसी था, और मैंने बड़ी जनरली उनके सहन में, हम लोग बैठे हुए थे, नीचे उनकी फसल लगी हुई थी, सहन में मैंने एक पिक्चर क्लिक करके मैंने अपने उसके ऊपर फेसबुक अकाउंट पे अपलोड कर दी थी, कुछ ग्रुप से वहाँ पे की थी। लेकिन उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट्स आते थे कि आपकी इस पिक्चर के ऊपर 8,000 लाइक्स हैं, आपकी इस पिक्चर पे 12,000 लाइक्स हैं। तो वो नाश्ते की जो पिक्चर थी स्पेसिफिकली, वो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, और ये बच्ची उन बच्चों में जाकर घुल मिल जाती है कि हमें ढूंढनी पड़ती है कि हमारे वाली इनमें से कौन सी है, क्योंकि जितने वो खेल रहे होते हैं मट्टी में और इस तरह से, उतनी ये वहाँ पर खेल रही होती है। लास्ट टाइम आपका ट्रिप कब हुआ? अभी मेरा तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही मैं बाइक का अपना टूर वहाँ से कंप्लीट करके लाहौर वापस आया। रमज़ान में गए हुए थे आप? जी हम रमज़ान के अंदर ही गए हुए थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर चलते हैं, तब आपकी क्या तासुरात थे, और स्पेशली लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी उन एरियाज़ के हवाले से कि वहाँ पर जाएं, या ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं नाबिया की वजह से डर रही थी कि पता नहीं ये सफ़र कर पाएगी भी या नहीं, क्योंकि बाइक का था, बाइक पे तो बड़ा बंदा थक जाता है, ये तो फिर छोटी थी, लेकिन इसने और बाइक ने बहुत साथ दिया। एक मर्तबा नहीं ये रोई, मैं थक गई थी, ये नहीं थकी थी बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र था, स्पेशली जंगल तक जाते हुए बहुत ख़तरनाक था। लेकिन ये हंस रही है, अपना जूता गिरा रही है, ये 3 से 4 बार तो इसका जूता गिरा है। हम दुआ अल्लाह करे जूता मिल जाए। वो पीछे से कोई वो पठान एक लेके आ रहा है, ये बच्चे का जूता 4 बार ऐसा हुआ, वो 4 बार इतना वो पीछे गए और इसका बच्ची का जूता हमें ला के दिए कि बच्ची का जूता पीछे गिरा हुआ था। इस कदर वो, और रास्ते में अगर हमने कहीं पे रोक भी लिए ना बाइक स्टे के लिए, तो वो जो वहाँ के लोग थे वो हमें कहते थे अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आप आएँ हमारे साथ, हमारा ऊपर घर है, रेस्ट करें आप वहाँ पे। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आए, हम खाने का इंतज़ाम करते हैं, चाय पिलाएं आपको। हमें तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था, 2 घंटे में हमें कोई 20-25 लोगों ने कह लिया आपको चाय पिलाएं अगर आपका रोज़ा नहीं है तो। हालांकि हम डर रहे थे क्योंकि पठान इस मामले में बड़ा सख्त होते हैं। वो रोज़ा अगर तोड़े तो वो लोग कहते हैं आप रोज़ा नहीं तोड़ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जाएं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। बहुत लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी फैमिलीज को? ये डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो इनके मैं देख रही थी इस कदर लोगों ने वो नेगेटिव कमेंट्स किए हुए कि मिसिस को ले गए, बच्ची को ये हो गया। हालांकि मैं कहूँगी बच्ची ने तो इतना इंजॉय किया था वहाँ पे, हमारे से ज़्यादा इसने इंजॉय किया था। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप दोनों हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह टूर करते रहें, और नाजरीन पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट करें। पीसफुल पाकिस्तान है और ये हम सब का पाकिस्तान है। देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।
है।